Hello students, good morning all of you. Now students, it is the time to solve another question of cube root with the help of other methods like prime factorization method and strikeout method, which I have explained yesterday in previous video. So students, let's start. In exercise 3.5, second question is based on the another method that find the cube root of the following numbers by using ones place of the cube of number. So student, if you want to find the cube root of this number by this method, first of all you have to memorize the some concept you have to memorize, that if a number has unit place number is 5, listen carefully what I am saying. If a number has unit place is 5, then we will guess that what is the ones place of the cube root of that number. What is the ones place of the digit? Yes, it is 5 also. So how can we say that it is 5? Because you have to memorize the concept which I am writing here. You have to memorize this table because it is very necessary. If you memorize all the digit, that if a number has unit place is 5, then the digit in unit place of the cube root of the number, it is also 5. Okay. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0. 1, 1, 2, 8, 3, 7, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9 and 0, 0. So student, this is the concept which you have to memorize. बच्चों, ये जो concept है ये memorize करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप इस मेथड से स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है अगर आपको, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इस नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है. सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इस नंबर के यूनिट प्लेस. फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ. स्टेप नंबर 1 आई हैव टू एक्सप्लेन दैट यू हैव टू चेक दैट व्हाट इज द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर. सो हियर द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज 5. देन you have to guess that what is the digit in unit place of the cube root of the number. So it is also 5. बच्चों, पहले स्टेप में ये देखना पड़ेगा आपको कि जो डिजिट दिया गया है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है. अगर 5 है तो हमें ये गेस करना होगा कि यानी कि अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा या वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो भी 5 ही होगा. वो भी कितना होगा? 5 होगा. तो ये हमने कैसे गेस किया? हाउ कैन वी गेस विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर? विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. सो स्टूडेंट, आई एम टेलिंग मोर एंड मोर टाइम दैट इफ यू वांट टू find the cube root of this method, then first of all you have to memorize all the digit which I have written in this table. Okay, because without this table you can't guess that what is the digit in unit place of the cube root of the given number. Okay, so I think you understand the step number 1. The step number 1 is, first of all you have to guess the digit in unit place of the
cube root of the given number is also 5. Okay. So we can write here the ones digit of the number is 5. Therefore the digit in unique place, or you have to say in one place, in the ones place of the cube root, in the ones place in the cube root, in the cube root of 3375 is 5. So student, this is the step number 1. I am further explaining that what is the step number 1. Student, step number 1 is, first of all you have to guess that what is the unique place of the cube root of the given number. पहले आपको बच्चों ये चेक करना है कि ये जो नंबर दिया गया है, ठीक है, ये नंबर के यूनिक प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5 यूनिक प्लेस। बच्चों यूनिक प्लेस का मतलब होता है वंस प्लेस। मैं बार बार बोलता हूँ यूनिक प्लेस, कभी मैं बोलता हूँ यूनिक प्लेस, कभी मैं बोलता हूँ वंस प्लेस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही हैं, एक ही नेम होते हैं। चाहे आप यूनिट बोलिए, यूनिट का मतलब ही 1 होता है, यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट मीन्स 1। तो चाहे 1 बोलिए चाहे वंस बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों आपको पहले स्टेप में क्या याद रखना है? पहले स्टेप में ये याद रखना है कि जो दिया गया नंबर है उसके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, ये चेक करना है। जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने जो अभी टेबल बताया था, टेबल मैंने जो लिखा था, उस टेबल से आपको ये गेस करना रहेगा कि अगर हम इस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो उस क्यूब रूट वाले नंबर के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो वो कितना आएगा? वो भी 5 ही आएगा। क्योंकि अभी मैंने जस्ट टेबल आपको बताया था, टेबल में मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 5 है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट 5 है, तो उस नंबर का अगर क्यूब रूट हम निकालेंगे तो उसके भी वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो भी कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि फ्रॉम वंस प्लेस वी हैव टू स्ट्राइक आउट 3 डिजिट। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं। हमें सेकंड स्टेप में क्या याद रखना है कि जैसे हमें पता चल गया कि वंस प्लेस पे जो क्यूब रूट इसका हम निकालेंगे, जो दिया गया नंबर है उसके वंस प्लेस पे अगर 5 हमें मिल गया, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमें वंस प्लेस से 3 नंबर क्या करने हैं? 3 नंबर को स्ट्राइक आउट करना है, मतलब कैंसिल करना है, हटाना है। तो जो नंबर बचेगा वो देखना है। तो यही लिखना है आपको, ठीक है। ये जो स्टेप हम लिखने जा रहे हैं उसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, स्ट्राइक आउट स्ट्राइक आउट 3 डिजिट, स्ट्राइक आउट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। फ्रॉम द राइट लिखिए, चाहे फ्रॉम द यूनिट वंस प्लेस लिख लीजिए। फ्रॉम वंस प्लेस, वंस प्लेस से हमें स्ट्राइक आउट करेंगे। दैट इज, देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे लिखा हुआ है 3375। अब वंस प्लेस इसमें क्या है? 5 ही तो है। वंस प्लेस क्या है? 5 है। तो हमें इस 5 से 3 नंबर ऐसे स्ट्राइक आउट कर देना है, हटा देना है। तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? मतलब कौन सा नंबर बच रहा है?
3 तो बच रहा है, देखिए 3 बच गया। तो अब इस 3 को हम लिखेंगे द लेफ्ट ओवर नंबर इज हेंस द लेफ्ट ओवर नंबर इज नंबर इज 3। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया। देखिए बच्चों, ये जो मेथड है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। पहला तो ये याद रखना है कि जो टेबल मैंने अभी बताया है वो याद रखना है। ठीक है, उस टेबल का काम इतना है कि जैसे ही आप किसी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो उस क्यूब रूट वाले नंबर का जो वंस डिजिट होगा वो कितना होगा वो उस टेबल से पता चल जाएगा। ठीक है, इसे मान लीजिए कि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 नंबर है, किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 डिजिट है। ठीक, अब उस नंबर का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उस नंबर के क्यूब रूट में कौन सा डिजिट आएगा? 8 आएगा। कैसे आएगा, कैसे हमने बताया? उस टेबल के हेल्प से बताया। समझ में आ रहा है? अब ये तो पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या याद रखना है? दूसरे स्टेप में ये याद रखना है कि हमें जो है 3 नंबर वंस डिजिट से 3 नंबर को हमें हटाना है। स्ट्राइक आउट मतलब होता है एलिमिनेट करना, हटाना। तो जब 3 नंबर हम हटा देंगे तो हमें जो नंबर बच रहा है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हेंस द नंबर लेफ्ट ओवर नंबर इज 3। दिस इज द स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम? स्टेप 3 थोड़ा सा और समझने वाला स्टेप है, इसलिए इसको मैं बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में देखिए, सबसे पहले देखिए हमें जो नंबर बच रहा है वो कौन सा नंबर है? 3 बच रहा है ना। अब ये देखना है कि वो 3 जो है किन 2 क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है, किन 2 क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 क्यूब से। 1 क्यूब कितना होता है बच्चों? 1 होता है। 1 क्यूब कितना होता है? 1 होता है। और 2 क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं आएगा? और 1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 है, ये जो 3 है बच्चों, वो ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूँ। ये जो 3 है, 3, ये 3 जो है 1 और 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 3 है ये 1 से क्या है? बड़ा है, और 8 से क्या है? छोटा है। 3 क्या है? 1 से बड़ा है, 8 से छोटा है। 1 का मतलब 1 क्यूब और 8 का मतलब 2 क्यूब। इसका मतलब जो 3 है वो 2 क्यूब से क्या है? छोटा है। 2 क्यूब का मतलब 8। 2 क्यूब मीन्स 8 एंड 1 क्यूब मीन्स 1। तो the number 3 lies between the 2 numbers, that is 1 cube and 2 cube. It means 3 is greater than 1 cube and smaller than 2 cube. तो बच्चों यही स्टेप याद रखना है। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर बचता है, जो नंबर बच जाता है, अगर वो नंबर जब किसी क्यूब वाले नंबर से छोटा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जो नंबर बचता है और वो नंबर किसी क्यूब वाले नंबर से अगर छोटा होता है, ठीक है, तो उस नंबर को हम नहीं लेते हैं। जो नंबर बचता है और जिस नंबर से वो बड़ा होता है वही नंबर हम यूज़ कर लेते हैं। किसके लिए यूज़ कर लेते हैं? इस नंबर को कंप्लीट करने के लिए। जैसे 5 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट मिल गया? 5 मिल गया। 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट मिल गया? 5 मिल गया। तो 10th डिजिट पे तो होगा। 10th डिजिट के लिए हमने कौन सा नंबर यूज़ किया? इसको नहीं लेना है आप, क्योंकि ये नंबर क्या है? 3 से बड़ा है। 2 क्यूब क्या है? 3 से बड़ा है। तो 1 क्यूब जो है 3 से छोटा है,
तो इस नंबर को हम ले लेंगे। किसके लिए ले लेंगे? इस नंबर के 10 डिजिट के लिए ले लेंगे। समझ में आ रही बात? तो यही लिखना है आपको। ये जो मैंने अभी जो लेक्चर दिया है उसी को आपको वर्ड में लिखना है 1 लाइन में। देखिए, नाउ 1 क्यूब इक्वल टू 1 एंड 2 क्यूब इक्वल टू 8। Hence largest digit whose cube is less than, किससे छोटा है? लेस देन 3 इज 1। ये इस लाइन को समझिए बच्चों। लार्जेस्ट डिजिट हुज क्यूब इज लेस देन 3 इज 1। उसमें जो है जो लार्जेस्ट डिजिट था, ठीक है, जैसे 1 क्यूब जो है 3 से क्या है? छोटा है। तो हमने 2 क्यूब को नहीं लिया था क्योंकि 2 क्यूब क्या था? 3 से बड़ा था। तो हमने किसको लिया? 1 क्यूब को लिया, क्योंकि 1 क्यूब का मतलब 1 होता है और 1 क्या है? किससे छोटा होता है? 3 से छोटा होता है। ठीक है, so the 10th digit is क्या होगा बच्चों? 1। तो बच्चों अब देखिए, 2 डिजिट हमने फाइंड आउट कर लिया। पहला डिजिट क्या फाइंड आउट किया? 5। दूसरा डिजिट ये 1st डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट हो गया। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, hence the क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट निकाला था? 3375 is, this is 1st digit, this is 10th digit, or you have to write equal to 15। अब बच्चों देखिए, ये जो मैंने इसको चेक भी कर सकते हैं आप। चेक कर लेंगे तब तुरंत समझ में आ जाएगा। चेक करने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे चेक करते हैं। देखिए बच्चों, चेक करने का तरीका बहुत आसान है। 15, इसका क्यूब रूट कितना मिला हमें? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्यूब रूट इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्यूब। क्यों है? क्योंकि देखिए 2 क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 8। 2 क्यूब इज 8। अब क्यूब रूट आप 8 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यही हम चेक करने जा रहे हैं कि अगर 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें 3375 मिलता है। देखिए 15 इंटू 15 इंटू 15 करके देखिए। 15 जा 225 होता है। ठीक है, एंड 15 से फिर मल्टीप्लाई करें। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 2 जा 10 और 1 11, 5 2 2, 5 7 3 3। देखिए बच्चों कितना मिला? 3375। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 3375। मिला कि नहीं मिला? यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आंसर सही है, करेक्ट है। ठीक है, सो वी कैन से दैट 15 is the cube root of 3375. Okay, this is very interesting method and I hope you are all understand the concept of this method. बच्चों ये बहुत ही ध्यान से इसको समझ लीजिए हर स्टेप को। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इस मेथड को समझने से पहले मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि उस टेबल को जरूर याद कर लीजिए जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। ये क्या है? ये गेस करने का एक तरीका है। 1 1 2 8 3 7 4
4 5 5 6 6 7 3 8 2 9 9 0 0। बच्चों ये क्या है? ये एक तरीका है, दिस इज द वे फ्रॉम विच वी हैव टू गेस, from which we have to guess that if a number has unique digit is 1, if a number has, listen carefully what I am saying, if a number has one's digit is 1, then the digit in unique, then the digit in one's place of the cube root of the number is also 1। हिंदी में बोलता हूँ कि अगर किसी नंबर के वंस डिजिट में अगर 1 नंबर आ रहा है तो उस नंबर का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उस नंबर के क्यूब रूट में भी वंस डिजिट जो होगा वो 1 ही मिलेगा। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद रखना है। अगर ये टेबल नहीं याद कर पाएंगे तो ये मेथड नहीं लगा पाएंगे। बच्चों ये मेथड आपके बुक में दिया गया है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक आउट मेथड, या इसको हम ये भी बोलते हैं वंस प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर डिजिट मेथड। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करना है कि गेस करना है कि जो नंबर दिया गया है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, वो इस टेबल से हम बताएंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है कि हमें 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट करना है। स्ट्राइक आउट का मतलब हटाना है, जैसे मैंने ये हटाया। ठीक है, फ्रॉम 1 डिजिट से आपको हटाना है। फिर जो नंबर बचेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो नंबर बचेगा फिर उसको हमें चेक करना है कि वो किन 2 नंबरों के क्यूब के बीच में आ रहा है। जैसे देखिए 3 बच गया था ना, तो 3 जो था वो इन 2 नंबरों के बीच में, क्यूब के बीच में आ रहा था। 1 और 8 के क्यूब के बीच, 1 और 2 के क्यूब के बीच के नंबर में आ रहा था। तो 2 क्यूब को मैंने क्यों नहीं लिया 10 डिजिट के लिए? क्योंकि 2 क्यूब जो है 8 होता है और 8 3 से बड़ा है, इसीलिए 2 क्यूब को नहीं लिया गया। और 1 क्यूब क्या था, वो 1 क्यूब का मतलब 1 होता है और 1 जो है 3 से छोटा होता है, इसीलिए 1 को ले लिया गया। और यही 1 जो है 10 डिजिट का काम करेगा इसके क्यूब रूट वाले नंबर के लिए। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर 5 1 डिजिट हो गया, 1 10 डिजिट हो गया, दोनों को मिला दिया गया तो क्या मिल गया हमें 15 मिल गया। और दिस इज द क्यूब रूट ऑफ द 3375। आई होप यू आर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्राइक आउट मेथड। सो स्टूडेंट, प्लीज do the question number B and C from by yourself before watching all the steps which I have given today. Okay, so thank you very much for being with us.